Hello, good morning student. Myself Kamal Sharma and welcome to Aryan Digital Classes. This video session it goes for class 11th and already 8 parts about this chapter are uploaded on your YouTube channel and software also. So you have to watch all the videos till end and you have to focus on that. Is it clear? Now we will stop this topic is trigonometric functions and it is for class 11 standard 11 and this is not a tough topic. It is very easy topic because it is linked chapter of class 10. Is it clear? Because in previous classes you already read about that the trigonometric functions, the trigonometric applications, trigonometric ratios also. So I don't think you have so many problems in this exercise. You can understand easily, you know the basic of trigonometry also, but till that you solve some of the questions and some of the exercise about easy way. Now we will solve some of the exercise and some of the questions about the prove that or find the values of. Is it clear? And that is some of the complications for you because I wrote I think 21 identities about trigonometric functions and now we will use that identities in examples and in questions also. Is it clear? So this session is very important for you because I will tell you, I will teach you how to use any identity in question and how to make LHS part is equal to RHS part. Is it clear? Now what to do? First you have to do that, learn all the identities which I wrote on blackboard or from your book, and some of the identities I don't write on also. So I will tell you that this identity is very important and that time you have to note down in your notebook also. Is it clear? Now we will solve example and I already cleared example number 12. I think example number 12 I already cleared. Right now we will solve example number 13. Example number 13 is very short also because it doesn't have so many identities. You have to focus to make an identity, how to make an identity and how to explore an identity. There are two ways to solve the question. Is it clear? Now example number 13. And what say example number 13? Example number 13 say prove that sin x plus y upon sin x minus y, sin x plus y upon sin x minus y is equal to 10x 10y upon 10x plus 10y, 10x plus 10y upon 10x minus 10y, 10x minus 10y. Is it clear? But अच्छा what to do? आपको करना क्या होगा? LHS पार्ट लीजिए और RHS के इक्वल प्रूव कर दीजिए. लेफ्ट हैंड वाला पार्ट को सोल्व करिए और इसके जैसा बना दीजिए या फिर इसको लीजिए और इसके जैसा बना दीजिए. That are two way. Is it clear? एंड इसके अलावा क्या करना होता है, जब आपके पास भी दोनों के जैसा ही कोई सॉल्यूशन ना हो तो इस पार्ट को भी बराबर सोल्व करिए, इसको भी सोल्व कर दीजिए और लास्ट में जो आंसर आने चाहिए वो इन दोनों के इक्वल हो जाने चाहिए. तो ये आपका प्रूवमेंट होता है हाउ टू सोल्व LHS इज इक्वल टू RHS. LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इज इट क्लियर? नाउ गो टू यू हैव द आइडेंटिटी sin x plus y. इवन वहाँ आप लोगों ने आइडेंटिटी में a प्लस बी यूज किया होगा या x प्लस वाई किया होगा तो देट आर नॉट इशू, नॉट एट ऑल. बट यू नो द आइडेंटिटी ऑफ sin x प्लस वाई एंड व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ sin x प्लस वाई. sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है? तो डायरेक्टली आप लोगों को पता है कि sin x क्या होता है. sin x cos x प्लस, तो मान लीजिए इसकी आइडेंटिटी क्या है. पहली बात तो sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी sin x cos y, sin x cos y. अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, cos x sin y. इज इट क्लियर? एक चीज तो ये हो गई. अब sin x माइनस वाई की भी पता होनी चाहिए आपको. sin x माइनस वाई ये मैं LHS सोल्व अपॉन में तो अपॉन में इजिकल टू एच कॉमन इजिकल टू ले लीजिए अपॉन वाली
इज इट क्लियर? अब ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यहाँ नेगेटिव सिंबल है तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा और कोई इशू नहीं रहता है। बाकी सेम एग्जाम ये आपका फॉर्मूला रहता है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ये LHS पार्ट को आप लोगों ने सोल्व किया इसके अकॉर्डिंग। अब आपको क्या पता, देखिए ये चीज है ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने जा रही है कि आप लोगों को यहाँ करना क्या होता है। इसके आगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं अपने पास जनरली, क्योंकि आपको 10 में कन्वर्ट करना है। 10 में कन्वर्ट करना है तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सा अपने पास में फॉर्मूला होता है 10x = sin x अपॉन cos x। इज इट क्लियर? ठीक है, अपने को क्या करना है, इसको इस टर्म को 10 बनाने के लिए यहाँ प्लस है माइनस है सेम चल रहा है। आपको इस टर्म को 10x बनाने के लिए cos y को हटाना पड़ेगा, cos y को तो हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, आपके cos x लाना पड़ेगा। ये तो सिस्टम करना है। इज इट क्लियर? अच्छा, cos x लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे cos y भी होना चाहिए, तभी तो cos y से cos y तो कट जाएगा और आपका sin अपन cos बच जाएगा। मतलब आपको किससे डिवाइड करना है, cos x cos y से डिवाइड करना है। जी समझे? अच्छा, क्या होगा जब इसको भी करेंगे, मान लीजिए इसको भी आपने cos x cos y से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, cos x से तो cos x कट जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या sin y अपॉन cos y, तो tan y बन गया, तो tan y अपना राइट आ रहा है। फिर मान लीजिए इसको भी अपन करें, क्योंकि पूरी इक्वेशन को होता है ना, सिंगल से नहीं होता, cos x cos y से करेंगे तो cos y to cos y कैंसिल, sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस सिंबल है वही आपका cos x cos y रहेगा, cos x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, sin y अपॉन cos y tan y में चेंज हो जाएगा। तो अपना जो प्रूव करना है अपने को जो चीज वो प्रूव हो जाए, तो इसके लिए करना क्या है अपने को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय cos x cos y। क्लियर? ये आपको रिटर्न स्टेटमेंट में देना होता है। एक स्टेप्स आपकी बढ़ेगी थोड़ी सी। लेट मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y, cos x cos y। Is it clear? Now what happen if we, अच्छा एक चीज पता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कैन यू डिफाइन व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर? If you don't know, I will tell you that the upper side of the fractional symbol is called numerator। जो फ्रैक्शनल सिंबल है, ये जो लाइन है ना आपकी, इसके ऊपर का साइड जो होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली साइड को डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? ऊपर वाला जो भी मैटर है आपको न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। लेट आपको इसलिए डिवाइड करना है sin x cos y अपॉन cos x cos y, प्लस है तो प्लस वही है cos x sin y अपॉन cos x cos y। ये बड़ी वाली भूल वाली लाइन, अब इसके नीचे भी sin x cos y अपॉन cos x cos y, प्लस ये आपका चल रहा है cos x sin y अपॉन cos x cos y। इज इट क्लियर? थोड़ा सा देखिए, इसको ध्यान से देखिए, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, थोड़ा सा क्या मिक्सचर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा मैटर आपका ब्लैक बोर्ड पे आ चुका है। तो देखिए ये वाला आपका मेन जो फ्रैक्शनल लाइन है ये वाला, अब कैंसिल आउट क्या क्या होता है, cos y to cos y कैंसिल होता है। इज इट क्लियर? यहाँ बात करें तो cos x to cos x कैंसिल होता है। इज इट क्लियर? यहाँ बात करें तो cos y to cos y कैंसिल एंड cos x to cos x कैंसिल। जो जो कैंसिल हो गया आपको आउट कर देना है, जो जो बच गया है उसको इन कर देना। अब मैं सोल्व करता हूँ, ये आप लोग जितनी देर इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज
इसका जो सम ऑफ द पार्ट, सम ऑफ द स्टेप्स आई विल टेल यू ऑन अपर साइड, सो आई हैव टू रफ दिस साइड। इज इट क्लियर? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा फास्ट। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये याद रखना, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये चीज करिए ना। देखिए कि आपका LHS पार्ट ही चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर रहे हो ना आप लोग, इसको सोल्व कर रहे हो RHS के इक्वल। यहां से आपके पास में बचा sin x cos x प्लस sin y cos y अपॉन sin x cos x प्लस, सॉरी यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव चल रहा है ना, फॉर्मूला था ना x sin x प्लस y का, यहाँ नेगेटिव था, माइनस sin y अपॉन cos y। अच्छा, इसी चीज को फिर से आगे आप राइट कर दो तो sin x प्लस cos x होता आपका 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। बाई यूजिंग आपने क्या यूज किया, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये यूज कर दिया हमने, tan के रेफरेंस में चेंज कर दिया। अब क्या यही प्रूव करना था क्या अपने को? यही तो प्रूव करना था। इट्स मीन इट इज इक्वल टू RHS। दिस रेफर टू राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, and we can say hence proof. And this is the solution of example number 3. It is not a hard. You have to know that why we done this step. आपने ये स्टेप क्यों की, ये आपको क्यों जरूरत पड़ी इस चीज को डिवाइड करने की? बिकॉज ये डिपेंड करता है आपको प्रूव क्या करना है, LHS पार्ट क्या है, व्हाट इज LHS पार्ट एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव इन RHS पार्ट। ये आपका LHS पार्ट का कन्वर्जन होता है RHS पार्ट में। LHS को RHS जैसा बनाना है या RHS को LHS जैसा बनाना है, या फिर दोनों को सोल्व करके एक जैसा सॉल्यूशन लाना है। तो दैट इज द प्रूवमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टू RHS राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? तो ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये आपको गेस करना पड़ता है। ये हर क्वेश्चन में, ये कोई आपका लॉजिक नहीं होता है, इस चीज का कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि आपको यही यूज करना है। हर क्वेश्चन में ये कंडीशनली चेंज होते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। इज इट क्लियर? तो आपके, अच्छा, आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बिकॉज आप लोग 11th क्लास में हो, 10th क्लास से आप लोगों का ये थोड़ा सा क्या नया सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा नया वे होता है स्टडी करने का। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें सम ऑफ द डाउट्स हो सकते हैं, तो वो आप लोग मेरे से क्लियर कर सकते हो। आप चाहो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हो। इज इट क्लियर? बट जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों को उनको थोड़ा सा डीपली देखना होता है, क्योंकि थोड़े से स्टार्टिंग में आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, और दीज आर वीडियो क्लासेस, तो आप लोगों को ये रेफर नहीं मिल पाता है कि आप लोग क्रॉस क्वेश्चंस करें, तो वो थोड़ा सा इश्यू रहता है। तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोग यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो चैनल के थ्रू आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी आपका इश्यू है आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। टिल दैट you have to screenshot of this question, and after that I will solve next question. Next, question number 14. What is question number 14? Show that, it's mean prove that. Show that लिखो चाहे prove that. tan 3x tan 2x and tan x. तीन चीजें, tan 3x, tan 2x, tan x is equal to
tan 3x minus tan 2x and minus tan x। अच्छा, LHS is equal to RHS आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में या तो LHS को RHS के प्रूव कर दो या RHS को LHS के प्रूव कर दो। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको सोल्व करेंगे। अपने को पता है कि tan 3x है, आपको 3x को 2x plus 1 भी कर सकते हो, tan 2x plus x, ये 3x ही बनना है फिक्स, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को करने का मेथड होता है। ये क्वेश्चंस आपको माइंड में रखने होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। ट्रिग्नोमेट्री में यही मेन चीज होती है कि आप लोगों को आइडिया बहुत जल्दी लगाना होता है, आप लोगों को कंपैरिजन करना होता है कि इसको कैसे कंपेयर करना है, कैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें क्या ट्रिक थी, क्या लॉजिक था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या लॉजिक चलता है। इज इट क्लियर? अब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो tan 3x is equal to tan 2x plus 1। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा आपका tan x plus y का ले लो या a plus b का लो, a plus b, a क्या है आपका ये और b क्या है ये, तो tan a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a plus b 1 minus ab यही होता है ना, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan, इज इट क्लियर? यही होता है आपका tan a plus tan b। अब आपका जो क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ नोट करें, इसमें ये फॉर्मूला लगा लो बाय यूज, है ना, ये तो आपका फॉर्मूला है, यहाँ लगाऊंगा तो tan 3x के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ, tan 3x इज इक्वल टू tan a यहाँ पे क्या है 2x प्लस tan b मींस tan x अपॉन राइट कर दीजिए 1 minus tan a means tan 2x and tan x। इज इट क्लियर? इसके अकॉर्डिंग मैंने इस चीज को सोल्व कर दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे इनटू होगा, तो ये इससे इनटू होगा तो 1 3x से हुआ तो tan 3x ही रह गया, tan 3x इज इट क्लियर, माइनस तो माइनस tan 2x tan x इससे हुआ तो tan 3x तो ये रह गया, फिर tan 2x एंड tan x, तीनों चीजें कंटिन्यू है, ठीक है। इजिकल टू इसके नीचे मान लीजिए 1 है तो ये 1 इससे भी मल्टीप्लाई हो तो ये तो सेम ही रहेगा, tan 2x प्लस tan x। इज इट क्लियर? नाउ आप लोग इस नेगेटिव चीज को उधर ले जाइए तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। देखिए इधर क्या रह जाएगा आपका tan 3x इक्वल टू उधर आपका tan 2x प्लस tan x, ऑलरेडी ये तो इधर था, ये इधर जाके प्लस में हो गया, क्या बन गया tan 3x tan 2x एंड tan x। ये जो चीज है आपकी, अच्छा प्रूफ में ये चीज एक साइड में रखनी है, बाकी मैटर इधर आएगा तो ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बन गया क्या आपका, देखिए tan 3x तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में था, ये माइनस में हुआ tan 2x, फिर ये भी माइनस में हो तो tan x इजिकल टू tan 3x इजिकल टू ये बच गया tan 3x tan 2x एंड tan x। ये देखिए क्या यही चीज जो है आप लोगों को प्रूव करने के लिए गई थी, तो ये हो गया हेंस प्रूफ। ये प्रूवमेंट हो गया एग्जांपल नंबर 14 ही ना, एग्जांपल नंबर 14। तो ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस चीज को बता सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। You can note down it if you want, otherwise take a screenshot of this question for your future record also. Do it fast. नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल नंबर 15। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए, इस चीज को समझने का कोशिश करिए
कि इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 50 एंड व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट कैन द आइडिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट मी चेक। पहले तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका क्या है, एलएचएस पार्ट जो है वो तो है आपका cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इजिकल टू आपको प्रूव करना है अंडर रूट 2 cos x। ये प्रूव करना है ना, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी नंबर 20 पे चलना है। आइडेंटिटी नंबर 20 क्या कहती है कि cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b अपॉन ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इस चीज को आइडेंटिटी नंबर 20 देखिए, इस चीज का सॉल्यूशन है। मैं आरएलएचएस लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा। इसमें मैंने वो फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला क्या आपका 2 cos a प्लस b। तो a प्लस b क्या है यहाँ पे, a प्लस b ये वाला है, तो ये वाला नोट कर लीजिए। a माइनस b जो है वो वाला, तो ये कंप्लीट में करूंगा ना ये वाले, इसमें आइडेंटिटी लगा। इसको मैंने पूरे को क्या मान लिया, a मान लिया, इसको पूरे को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। तो cos a प्लस cos b एक आइडेंटिटी है तुम्हारी, cos a प्लस cos b। यहाँ राइट कर देता हूँ, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 एंड cos a माइनस b अपॉन वाली आइडेंटिटी है। तो ये वाली आइडेंटिटी अपन यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ यूज करें तो 2 cos, ठीक है। अब a क्या है, a तो आपका पूरा ये है पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो ये लीजिए प्लस, ये तो a हो गया आपका। b क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये लीजिए अपॉन 2 है तो ये लीजिए, इसका सॉल्यूशन है। अब इसका cos a माइनस b, तो a क्या है आपका, फिर से ये देखिए a है पाई बाई 4 प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस b आपका क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये लीजिए अपॉन, ये इसका सॉल्यूशन हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको रफ कर दूँ, ये आपका एलएचएस पार्ट चलेगा, क्लियर। एलएचएस पार्ट को अब सोल्व करेंगे। अब देखिए क्या सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है, 2 cos, इज इट क्लियर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये ब्रैकेट खोल दिया, ये ब्रैकेट खोल दिया, ये ब्रैकेट खोल दिया, और ये इज इट क्लियर। माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या पाई बाई 4 और पाई बाई 4। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना होता है, 2 पाई बाई 4 होता है, 2 पाई बाई 4 होता है ना। तो इसको आप लोग राइट कर सकते हो 2 पाई बाई 4, और ये 4 है तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बच गया जो मेरा है। यहाँ पे देखते हैं cos, नेक्स्ट वाले मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा तो क्या बचेगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स, ब्रैकेट खुला तो माइनस के साथ में, तो जो प्लस वाला है वो तो किस में हो गया, माइनस में, माइनस माइनस फिर हो गया प्लस का एक्स अपॉन, ये लीजिए पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है, एक्स प्लस एक्स बच गया आपका 2, तो ये बच गया 2 cos पाई बाई 4, यहाँ से तो पाई बाई 4 बचा, ठीक है। फिर बचा cos, ऊपर से बचा एक्स प्लस एक्स, 2x अपॉन 2, ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो बच गया क्या 2 cos पाई बाई 4 एंड cos x, इज इट क्लियर। नाउ अपने को cos पाई बाई 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड cos x साथ में है। अब देखिए इसको कैंसिल करना है, तो क्या मेथड होता है इसका, कैंसिल करने का मेथड ये होता है कि आप लोग इसको अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 को आप लोग क्या राइट कर सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो ना। ये अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से किया तो 2 ही तो निकलेगा वापस से। तो आप लोगों ने इस अंडर रूट 2 को क्या किया, बाहर वाले 2 को मैंने लिख दिया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये है ही, और वो सब साथ में ये लीजिए अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल बच गया, एक अंडर रूट 2 बच गया और साथ में बच गया cos x, और यही आपको प्रूव करना था। तो RHS
ये आपका एग्जाम्पल नंबर 15 जो है इसका सॉल्यूशन। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन राइट नाउ, अदरवाइज आई विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, all of you have done. Yes, all of you complete. Now, what to do? Next step क्या होगा आपका? आपके 2 एग्जाम्पल्स बचे। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 सेम एज 15 जैसा है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। वहां पे कोस के लिए था, यहाँ पे आप लोगों को साइन के लिए होगा, सॉरी कोस के लिए ये कोस का एक ऊपर वाले कोस का फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाले ऊपर देखिए क्या है आपको कोस 7x कोस 5x है, तो कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, कोस a प्लस कोस b का। नीचे साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस साइन b का फॉर्मूला लग जाएगा। इनको सॉल्व करते हुए लास्ट में आपको कोटक्स के रेफरेंस में इसको प्रूव करना है। आई थिंक आप लोग कर लोगे। 17 वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप लोगों को खुद को करना है। अब इसमें क्या लॉजिक चलता है आपको खुद को फाइंड करना है। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे वीडियो सेशन जब इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे तब करवाऊंगा। टिल दैट यू हैव टू ट्राई हाउ टू एग्जाम्पल नंबर 17 एंड हाउ टू एक्सरसाइज 3.3 कैन सॉल्व। इज इट क्लियर? एक्सरसाइज 3.3 अच्छा एग्जाम्पल्स लगभग आप लोगों को हो चुके हैं। अब आप लोग एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर पाते हो दैट इज वेरी गुड फॉर 2 एंड ह्यूमन आल्सो, क्योंकि अपना टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लोग अटेम्प्ट करिए, बाकी के क्वेश्चंस में आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे करवाता रहूंगा। एंड टिल दैट एंजॉय योर लाइफ, डू हार्ड वर्क, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।